اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفثہ نفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 96 کا ترجمہ اور تفسیر سنا، جو کہ ڈاکٹر اسحاق صاحب کے بیان القرآن سے لی گئی تھی۔ ہم انہی آیات کو فی دلال القرآن کی روشنی میں بیان کریں گے کہ فی دلال القرآن میں اس کی تفسیر کیا کی گئی ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدونی، یہ ہے تمہاری امت جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم میری ہی بندگی کرو۔ یعنی یہ ہے تمہاری اصل امت جو انبیاء کی امت ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی عقیدے کی حامل، ایک ہی طریقہ زندگی کے داعی رہے، اسی کی دعوت دیتے رہے۔ ان کا عقیدہ عقیدہ توحید ہے اور اس کی غائب صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس زمین پر انبیاء اور رسل کی ایک ہی امت رہی ہے اور سب کا رب وہی ایک خدا ہے جو آسمانوں میں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق ہے۔ اس آیت کی تفسیر مولانا امین احسن اصلاحی اس طرح کرتے ہیں۔ تمام انبیاء ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں کئی انبیاء کے بارے میں اس کی پچھلی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اب فرمایا گیا ہے کہ ان تمام کی دعوت اور ان کے دین ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہے، اور یہ سب انبیاء ایک ہی ملت اور امت، اور میں ہی تمہارا رب۔ مطلب یہ کہ اگر انبیاء کے درمیان کسی نے تفریق کی ہے، ان کے لائے ہوئے دین میں کسی نے بدعتیں ایجاد کی ہیں اور خدا کی توحید میں کسی نے شرک کی ملاوٹ کی ہے، تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہے۔ ان نبیوں کا دامن ان چیزوں سے پاک ہے۔ کچھ دن پہلے اسی پوائنٹ پر ایک مضمون بچوں کے لیے لکھا گیا تھا، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 پر بیس تھا، جو کہ اسی مضمون، جس میں یہی مضمون ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213، mankind were one community and Allah sent prophets with glad tidings and warnings۔ یعنی یہ انسان جو ہے یہ سب ایک ہی امت تھے اور اللہ نے بشارتیں بھی نبیوں کے تھرو بھیجی تھی اور وارننگ بھی، وعید بھی نبیوں کے تھرو بھیجا تھا۔ He sent down the scriptures، یعنی اپنی جو کتابیں اللہ نے بھیجی تھی، in truth to judge between people in matters wherein they differed، کہ لوگ جن جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے کتاب بھیجی تھی۔ جس میں یہی بات کہی گئی ہے، the mankind were one community، only those people differed، یعنی اختلاف کس نے کیا؟ those differed to whom early scriptures were given، یعنی اختلاف کرنے والے بھی کون تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ کی پچھلی کتابیں عطا کی گئی تھی، جیسے موسیٰ کی قوم تورا اور حضرت عیسیٰ کی قوم بائبل کو بائبل بھیج دی گئی۔ They were Jews and Christians، they differed because hatred on to other، ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر انہوں نے تفرقہ بازی کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں جو تفرقہ بازی ہوئی، جس طرح یہودیوں نے سازش کی حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی پوری سازش کی اور بڑی بڑی جنگیں ان دونوں کے درمیان ہوئی، ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر انہوں نے ڈفر کیا۔
यानी तफाका किया, दीन के टुकड़े किए। हालांकि हकीकत यह है द religion of the earth was only Islam. The religion of the earth was only Islam, which was given to the Adam, Noah, Ibrahim, Moses and Jesus. यानी अल्लाह का जो दीन था वो शुरू से ही इस्लाम था, जो कि हजरत आदम को दिया गया, नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मूसा को और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया। Last prophet was our prophet. Jews and Christians differed from our prophet. Jews और क्रिश्चियन ने हमारे नबी से तफरका किया और अपने मजहब को अलग कर लिया because of hatred. hatred किस बुनियाद पर था, ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। because of the hatred based on the racism. ये पॉइंट नोट करें, आजकल रेसिज्म पर अमेरिका में, यूरोप में बड़ा बवाल होता है कि आपने रेसिस्ट कमेंट कर दिया। अगर आपने किसी को गोरा कह दिया, किसी को काला कह दिया, यानी किसी तरह से रेस से रिलेटेड कोई बात कही है तो कहा जाता है कि इसने रेसिज्म अटैक किया है। हालांकि ज्यूज एंड क्रिश्चियन ने हमारे नबी से, हमारे प्रॉफिट से रेस की बुनियाद पर तफरका किया था, उनसे अलग हुए थे। अब इसको फिर समझ लीजिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में दो लाइनें निकलती हैं, इनके डिसेंडेंट में दो लाइन जाती है। पहली लाइन में हजरत इसहाक है, याकूब है और इनकी औलादें हैं। हजरत इसहाक और याकूब है, इनकी औलादें को हम बनी इसराइल कहते हैं। बिल्कुल आप हजरत याकूब का लक़ब था इसराइल, इनको कहते हैं पीपल ऑफ इसराइल। हजरत मूसा, ईसा सब हजरत इसहाक की ही नस्ल से आते हैं। तो एक रेस थी हजरत इसहाक, याकूब और उनकी औलादों की। हजरत इब्राहिम की दूसरी जो शाख निकलती है, जो दूसरे डिसेंडेंट थे, दूसरी औलाद थी, हजरत इस्माइल थे। हजरत इस्माइल की नस्ल में बीच में कोई नबी नहीं पाया जाता और आखिर नबी हमारे आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was from the race of इस्माइल। इस्माइल की शाख से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। This was the base of the differences between the Jews and the Christians towards our prophet। ये था कि ये हमारी रेस से, हमारी नस्ल से नहीं है। एक बुनियादी इन्होंने इस पर डिफरेंस किया था और तफरकाबाजी की थी और अपने मजहब को अलग कर दिया था। ये नहीं माना था कि नबी है, आखिरी नबी। Our prophet doesn't belong to the family of and forefathers of Moses and Jesus. They are called people of Israel. Our prophet belongs to family of Ismail, son of Ibrahim alayhi salam. Islam is religion since the Allah sent Adam alayhi salam. ये पॉइंट रिलेटेड है आयत नंबर 92 से। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा व अना रब्बुकुम फअबुदूनी। मैं आयत क्लियर, ये बातें आप तक पहुंच गई होंगी। अब जो दूसरी बातें हैं तफसील भी सुन लीजिए, क्या क्या कहा गया है। अब इन लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा है। वतक़त्तऊ अमरहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन फमन यामल मिनस्सालिहात वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसाइही व इन्ना लहू कातिबून व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। आयत नंबर 93, 94, 95, ये तीनों को एक साथ लेते हैं। कहा गया कि इन लोगों ने आप अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, सब हमारे ही तरफ लौट कर आने वाले हैं। फिर जो नेक अमाल करे और वो मोमिन भी हो तो उसकी कोशिश की नाकदरी न की जाएगी। हम उसे लिख रहे हैं और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उसके लिए मुहाल है वो बस्ती पलट
वो बस्ती वाले पलट कर ना आए। रसूलों के बाद लोगों ने अपने दीन के टुकड़े कर डाले। रसूलों की एक उम्मत थी, तमाम रसूल एक ही बात के दाई थे। वो दाई क्या थे? वहदानियत, द इस्लामिक मोनोथीज्म, एक ईश्वरवाद जिसे आप कहते हैं। एक ही बात की दावत दी, एक खुदा की, एक ईश्वर की पूजा करो, एक ही वही इबादत के लायक है, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। दूसरी दावत थी कि रसूलों पर ईमान लाओ, और तीसरी जो बुनियादी बात थी कि यौम आखिरत पर, द डे ऑफ द जजमेंट पर ईमान रखना। ये तीन ऐसी दावतें थी। दीज आर द कॉमन फीचर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। तमाम रसूल शुरू से आखिर तक तौहीद की दावत देते रहे, इसमें कभी तब्दीली नहीं। तौहीद पर मबनी निज़ाम जिंदगी और कवानीन में तफसीलात का जो फर्क है, यानी जो हमने पहले पढ़ा है दीन और शरीयत, इनके शरीयतों में जो कानून जो बनाए गए, जो कानून में जो इजाफा हुआ है, वो जो फर्क पाए जाते हैं सबकी शरीयतों में, इसकी वजह क्या है? हर दौर के लोगों की सलाहियतें अलग अलग थी, हर दौर में तब्दीलियां थी, इंसानी जहन मैच्योर हो चुका था, तरक्की कर चुका था, और इन बुनियादों पर इनकी शरीयतों में आप फर्क पाते हैं। लेकिन बावजूद रसूलों की उम्मत के एक होने के, रिसालत की बुनियाद में यकसानियत पाए जाने के, उनके मुत्तबईन ने, उनके फॉलोअर्स ने आपस में अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर डाला। गोया हर गिरोह दीन का एक एक टुकड़ा लेकर अलहदा हो गया, और फिर उनमें बहस मुबाहसे हुए, उनमें दुश्मनी पैदा हुई, और एक ही रसूल के मानने वालों के दरमियान इस कदर दुश्मनी पैदा हुई कि दीन और अकीदे के नाम पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। हालांकि उनका दीन एक, उनका अकीदा एक, और रसूलों की पूरी उम्मत एक। जैसा कि अभी दानी साहब ने आपको पढ़ के सुनाया कि हर आलिम दीन अपना एक ग्रुप उसने बना लिया है और अपने लिए टॉपिक अलॉट कर रखा है, उसी पर मुनाजरा करता है, उसी पर बहस करता है। और आज हम देखते हैं कि एक ही नबी के फॉलोअर्स एक दूसरे की जान लेने पर उतार हैं। ये बात पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है कि जो नेक अमाल करे और मोमिन भी हो तो उसकी कोशिश की बेकदरी नाकदरी न की जाएगी। हम उसे लिख रहे हैं। यहाँ पर यह कानून मकाफात अमल है। एक उसूल बयान हुआ है, आपने बहुत सुना होगा मकाफात अमल। तो ये क्या है? कानून मकाफात अमल। एक इंसान अमल करता है, एक उसका नतीजा है। अमल और उसका असर क्या होता है? अमल साले को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वो अमल ईमान की बुनियाद पर हो। यानी अमल कैसा हो? कोई इंसान मोमिन ईमान वाला हो तो उसके अमल की नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके सारे अमाल को नोट किया जा रहा है। फिर आगे तो सैयद साहब कहते हैं कि ईमान और अमल साले एक दूसरे के लाजिम व मलजूम है। ईमान और अमल साले एक दूसरे से सप्लीमेंट है, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दिल में ईमान का होना लाजमी है, तभी अमल सालेह अल्लाह की निगाह में कदर कीमत हासिल कर सकेगा। अगर दिल में ईमान है तभी उसका अजर अल्लाह ताला देगा। ईमान ही जिंदगी की बुनियाद है, अमल साले ही ईमान का फल है। यानी अगर दिल में ईमान है तो नेक अमाल जाहिर होंगे, इंसान के हाथ पैर से जबान से नेक अमाल सामने आएंगे, जो इस बात का सबूत फराहम करता है कि दिल में ईमान मौजूद है। इस्लाम बजाय खुद एक चलते फिरते अकीदे का नाम है। अगर यह अकीदा दिल के अंदर मौजूद हो तो वही अमल सालेह के रूप अख्तियार करता है। गोया अमल सालेह क्या है? दिल में पोशीदा ईमान की जाहिरी शक्ल है। अमल सालेह क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ गुड डीड।
तो गुड डीड का एक्सप्रेशन इंसान करता है वो इंसान अमल साले है जिसका रिलेशन ईमान से है। ईमान की ज़ाहिरी शक्ल है जिसकी जड़ें गहराइयों में पिवस्त हैं और फैली हुई हैं। इसीलिए कुरान जब भी अमल और मकाफात अमल का उसूल बयान करता है तो ईमान और अमल साले का जिक्र एक साथ करता है। लिहाजा ऐसे ईमान पर कोई अजर नहीं मिलने वाला जो खाली हो, ऐसा ईमान जो जामिद हो, जो किसी अमल पर न उभारता हो, न उससे कोई फल जाहिर होता हो, न उस अमल पर कोई अजर मिलने वाला है जिसका ईमान से रिश्ता कटा हुआ हो और वो ईमान पर मबनी ना हो। और बगैर ईमान के अच्छे अमल की कोई हैसियत नहीं है। This is all about ayat number 92 to ayat number 94। 95 को मैं छोड़ दे रहा हूँ। 95 में थोड़ा सा दिया गया है इस बात का कि लोग इस बात का जिक्र किया गया है कि जहन में ये बात ना आने पाए कि जिन बस्तियों को अल्लाह ने हलाक किया है उनकी सजा दुनिया में मिल गई है, वो आखिरत में पलट कर नहीं आएंगे और आखिरत में अपनी सजा पूरी नहीं करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ने कह दिया है वो हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उसके लिए मुहाल है कि वो बस्ती वाले पलट कर ना आए। सब पलट कर आएंगे। जिनको इस दुनिया में सजा मिल चुकी है, जिन बस्तियों को अल्लाह ने जिन कौमों को तबाह कर दिया है, ये फिर सजा के लिए, सजा और जजा के लिए मैदान हश्र में ये सब हाजिर होंगे। इनके बस में नहीं है कि लौट करके अल्लाह के सामना ना करें। अब दोबारा हाँ आप लोग कंट कीजिएगा तो फिर आपसे बात होगी इंशाअल्लाह।